तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर का डिटेल स्टडी किया था। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है, तो उसका भी हमने डिटेल स्टडी किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज़ एनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एनकोडर से। सो एनकोडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है क्योंकि फॉर डिज़ाइन ऑफ दिस एनकोडर वी यूज़ the basic gates, that is and, or and not, so that performs the reverse operation of a decoder। ठीक है, तो एनकोडर जो है वो रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है डिकोडर का। अभी एनकोडर के बाद हम डिकोडर लेंगे। ठीक है, सो इट हैज़ द मैक्सिमम 2:n इनपुट लाइन्स। ठीक है, तो इनकोडर में जो इनपुट रहेगा, सो दैट हैज़ द फॉर्मूला ऑफ 2:n and this n is nothing but the output lines। okay, so it will produce the binary code equivalent to the input which is active high. Therefore the encoder encode 2:n input lines with the n number of bits। so it is optional to represent the enable signal in the encoder। ठीक है, तो जिस तरह से हमने मल्टीप्लेक्सर में अनेबल लिया था ई, सो दैट विल बी अ ऑप्शनल इन केस ऑफ दिस एनकोडर। मीन्स आप उसको डिज़ाइन में दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाया तो भी चलेगा इन केस ऑफ दिस एनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, तो एनकोडर क्या करता है, 2:n इनपुट लाइन्स उसमें एंड दैट हैज़ द n नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो अभी हम इसके जो टाइप्स है वो कवर करेंगे सो दैट दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, सो दिस एनकोडर हैज़ अ ऑपरेशन अपोजिट टू द डिकोडर। So first type of encoder is the 4:2 encoder। so in that first we'll see the its block diagram। so in 4:2 encoder it has the 4 inputs which are y0, y1, y2 and y3 is there, and there are two outputs, that is a0 and a1। so that is the block diagram of 4 to 1 encoder। ठीक है, तो जिसमें 4 इनपुट्स है y0, y1, y2 and y3 and two outputs a0 and a1। so at any time only one of these 4 inputs can be 1 in order to get the respective binary code। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक ही इनपुट आउटपुट में कनेक्ट होगा, वेदर इट इज़ y0 और y1, y2 और y3। ठीक है, एट अ टाइम एक ही इनपुट आउटपुट में मिलेगा। मीन्स जो भी डेटा रहेगा ये y0 टू y3 पे, ठीक है, इट कैन बी अ 4 बिट, इट कैन बी अ 2 बिट, इट कैन बी अ 8 बिट डेटा, सो दैट कैन बी रिसीव एंड एट दिस a0 एंड a1, दैट इज आउटपुट। देन विल सी द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस एनकोडर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा तो आपको ये स्कीमेटिक निकालना है, ब्लॉक डायग्राम, एंड राइट डाउन अबो फिगर शोज द 4:2 encoder which has the 4 inputs and the 2 outputs are there, like that। then after that the second term is the truth table। so here is the truth table of 4:2 encoder। so it has the inputs and outputs, so truth table gives the inputs and output relationship। so here 4 inputs are there, y3, y2, y1 and y0, and the two outputs a0 and a1 is there। so the first condition is when this y0 is 1, y1 is 0 and y2 is 0 and y3 is 0, so at that time your output is 0 0। we suppose we are taking the 2:2, that is the 4, so there is a 4:2 encoder is there, so the two outputs are there, so the value of this n is 2। so there are 4 conditions in the truth table, so we take this a0, a1 first as a 0 0, then at that time this y0 means the first input will be taken at the output when these a1 and a0 both are 0 0, that is the first condition। second condition, this a0 is 1 and a1 is 0, so at that time the y1 will be connected at the output, will get the output, so that's why this y1 is 1 and the rest are
inputs are 0 because they are not connected at the output. Only the y1 will be selected and we get the output. The third condition is the a0 is 0 and a1 is 1. So in that case the y2 will be get connected at the output, or the data from y2 will be connected at the output, and other inputs are 0 like y3, y1 and y0. Last case, when a1 and a0 are 1 1, so at that time this y3 will be get at the output and other inputs are get 0 because they are not connected, like that. So the summary of this truth table is we get the diagonally data that is started from y0, y1, y2 and y3. तो इस तरह से आप इस ट्रुथ टेबल को ध्यान में रख सकते हो क्लियरली, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि a0 एंड a1, ठीक है, तो ये जो 0 0 है मीन्स डेसिमल में आपका 0 है, 0 1 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 2 एंड 1 1 मीन्स 3, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है 0 0, एट दैट टाइम विल गेट द y0 एट द आउटपुट, ओके। सेकंड कंडीशन 0 1 मीन्स y1, ठीक है, अदर इनपुट्स आर 0. थर्ड वन इज द 1 0 means y2, it is 2 means it is y2, and last condition is 1 1 means 3 in the decimal, so it is y3, like that, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो ये डायगोनली जो एलिमेंट्स है दैट आर वंस, अदर रिमेनिंग्स आर 0, ठीक है। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द 4:2 encoder. Then we'll form the Boolean equation from this truth table and then design the 4:2 encoder. So a0 and a1 are the outputs. So Boolean equation or Boolean function gives the relation between output to the inputs, okay. So the first output is a1, so in that case it will be a1 is equal to y3 plus y2 is there, and for a0 it will be this y3 plus y1 is there. So these are the two Boolean function for this 4:2 encoder. Then after that we take the design of this encoder. So in design we clearly know that the two OR gates are required because there is addition. So for addition we will use the OR gate. So there are two terms, two outputs are there, a0 and a1. So that's why two OR gates are required, and the inputs are this y0, y1, y2 and y3 is there. So we'll get the output as a a0 and a1 because in equation we have only three inputs, y1, y2 and y3. So this y1, y2 and y3 are the inputs for this two gates, that is one and second OR gate. So y2 plus y3, that is the first condition, so that is input to the first OR gate, and we will get the output as a y3 plus y2. So that is the output. a1 is there, second is a0. For a0 the first input is y3 for second OR gate, second input will be the y1 for this second OR gate, and we will get the output, that is y3 plus y1 as the output of a0. So that is the design for this 4:2 encoder. Then we'll take the second type of encoder, which is known as the octal to binary. So that is 8:3, and we know that the base of octal number system is 8, so that's why it is called as the octal to binary encoder, or it is known as a 8 to 3, ठीक है। तो जिस तरह से हमने 4:2 का एनकोडर देखा उसी तरह से 8 to 3 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, एंड उसके बाद हम उसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। Then in block diagram, so this 8 to 3 encoder consists of 8 inputs, that is from y0 to y7, क्योंकि बाइनरी में हम 0 से काउंट करते तो टोटल
8 inputs are there for this 8s to 3 and these 3 are the outputs. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन 8s to 3 मीन्स फर्स्ट जो फिगर है या नंबर है, सो दैट विल डिनोट द इनपुट्स एंड लास्ट वन डिनोट्स द आउटपुट. ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर आया आपको क्वेश्चन इस तरह से, व्हाट आर द आउटपुट्स फॉर 8s2 और 8 to 3 एनकोडर. ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो कि देयर आर 3 आउटपुट्स इन दिस 8 to 3 एनकोडर. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टल टू बाइनरी. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो 8 to 3 एनकोडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश 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 और नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर. ठीक है, बिकॉज द बेस ऑफ दिस octal number system is 8, so that's why it is called as a octal to binary. So these are the 8 inputs and 3 outputs are there. Then we'll see the actual truth table, which is nothing but the working of this 8 to 3 encoder. So we know that 2n, that is 2 to 3 is there. ठीक है, क्योंकि 3 आउटपुट्स है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा सोचना है, जो आउटपुट से 3 वो आपका n रहेगा. 2 to 3 आर 8. सो देयर आर 8 कंडीशंस इन द ट्रूथ टेबल फॉर दिस आउटपुट A0, A1 एंड A2. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो रहेगा बीट कंडीशन वो 0 0 0. दिस A0 इज 0, A1 इज 0 एंड A2 इज 0. सो इन दैट केस Y0 विल बी सिलेक्टेड एट द आउटपुट. ठीक है, बिकॉज अगर हम डेसिमल में लिखेंगे 000 मीन्स इट विल बी अ 0 इन डेसिमल. सो दिस Y0 विल बी 1, अदर रिमेनिंग्स आर 0. ठीक है, तो ओनली Y1 पे जो डेटा होगा दैट डेटा विल बी प्रेजेंट एट द आउटपुट और कनेक्टेड एट द आउटपुट. रिमेनिंग बिट्स आर 0. ओके, देन आफ्टर दैट second condition, this A0 is 1, A1 is 0, A2 is 0. So that will be a 1 in the decimal. So that's why Y1 will be selected. ठीक है, तो मीन्स आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो. ठीक है, अदर इनपुट्स आर 0. ठीक है, तो यहाँ पे Y1 कनेक्ट होगा आउटपुट में. ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम एक ही इनपुट का डेटा आउटपुट में मिलेगा. ठीक है, इस तरह से. थर्ड कंडीशन 0 1 0, that will be a 2 in the decimal. So Y2 will be 1, means Y2 get connected at the output, that's why it is 1, and other remainings are get 0. Okay, next condition 0 1 1, so that will be a 3 in the decimal. So Y3 will be 1 and the other remaining inputs are 0. ठीक है, तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो. 1 0 0 means 4 in the डेसिमल. ठीक है, सो दैट्स वाई Y4 विल बी प्रेजेंट एट द आउटपुट. तो Y4 को जो इनपुट है वो आउटपुट में प्रेजेंट होगा. रिमेनिंग इनपुट्स आर गेट 0. 1 0 1 मीन्स 5, सो Y5 विल बी प्रेजेंट, अदर इनपुट्स आर गेट 0. एंड द नेक्स्ट वन इज 1 1 0, दैट विल बी द 6 इन द डेसिमल. सो Y6 विल बी प्रेजेंट एट द आउटपुट, अदर इनपुट्स आर गेट 0. And the last one is 1 1 1, so that will be the 7 in the decimal. So Y7 will be present at the output, other inputs are get 0, like that. ठीक है, तो इसका जो समरी है वो इस तरह से कि डायगोनली जो भी एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द Y0 टू द Y7. ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, जो मैंने यहाँ पे ओवल बनाया है. ठीक है, सो दैट इज़ Y0 टू Y7. अदर रिमेनिंग बीट्स इन द अपर हाफ and in lower half will be the 0, and that is depend on the conditions of this A0 A1 and A2. ठीक है, so that is the truth table. ठीक है, तो अभी इस ट्रूथ टेबल से हमें बुलियन इक्वेशन फॉर्म करना है. मीन्स बुलियन इक्वेशन मिलेंगे तो हम उससे डिज़ाइन कर सकेंगे ये एनकोडर. ठीक है, then we'll see the Boolean equation. So there are 3 outputs. So Boolean equation gives the relation between the these outputs and inputs. So this first one is the A0, so that will be the Y1 plus Y3 Y5 plus Y7, and for A1 is equal to Y7 plus Y6
plus y3 plus y2 is there, and for a2 it will be a y7 plus y6 y5 and y4 is there. So clearly we seen that there is a relation of addition, that is OR gate or we are using to get this output. ठीक है, तो एक ही गेट इसमें जनरली यूज़ होगा, वो है OR गेट, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म्स है, इंडिविजुअल टर्म्स में जो रिलेशनशिप है वो समेशन का है, एडिशन का, एंड एडिशन के लिए यूज़ करते हैं हम OR गेट. ठीक है, तो यहाँ पे OR गेट का यूज़ होगा टू गेट दिस थ्री आउटपुट्स A0, A1 एंड A2, एंड फॉर दैट इनपुट्स आर फ्रॉम Y0 टू Y1, sorry, Y0 to Y7. Then we'll take the design. So three terms है A0, A1, A2, that's why we require the three OR gate. ठीक है, so that is the first OR gate, second OR gate, third OR gate, and it has the input from Y1 to Y7. ठीक है, तो बुलियन इक्वेशन हमारे पास है, उस हिसाब से आपको A0, A1 एंड A2 यहाँ पे आउटपुट्स में मिलेंगे. ठीक है, तो एक आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ. फर्स्ट सपोज इट विल बी अ A2. So A2 is Y7 plus Y6 plus Y5 plus Y4. So these are the inputs Y7, Y6, Y5, Y4. That is, so these are inputs, that is 4 inputs are there. ठीक है, तो OR गेट में हम नंबर ऑफ इनपुट्स कितने भी दे सकते हैं, n नंबर ऑफ इनपुट्स, बट आउटपुट इज़ ओनली 1. ठीक है, एंड गेट में भी सेम. ठीक है, सिर्फ नॉट गेट में आपका एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट रहेगा. ठीक है, क्योंकि हमने जो गेट्स पढ़े वो 2 इनपुट्स के लिए थे, वो फॉर एग्जांपल थे, तो 3 इनपुट भी हो सकते, 4 इनपुट भी हो सकते, 5, 6, 7 एन नंबर ऑफ इनपुट्स आर देयर इन द गेट्स, बट आउटपुट इज़ ओनली 1. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट था 4 इनपुट्स का. सो वी यूज़ द 4 इनपुट OR गेट हियर एंड विल गेट द आउटपुट y एज अ एडिशन ऑफ दिस इनपुट्स. सो दैट इज़ y7 प्लस y6 प्लस y5 एंड y4 इज़ द आउटपुट, एंड विल गेट द A2 लाइक दैट. we are getting this A1. so A1 has a Y7, Y6, Y3 and Y2. ठीक है, तो यहीं से हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिए. ठीक है, Y7 is taken from this tab, Y6 is also taken from this tab, and the third one is the Y5 is taken, sorry, Y3 is taken as a new and Y2 is taken as a new. ठीक है, तो इस तरह से these are the 4 inputs for second OR gate, and that's why we get the A1 as a Y7 plus Y6 plus Y3 plus Y2. And same procedure is for A0. It has the Y7, Y5, Y3 and Y1 as a input. So like that, this is the total design for this encoder. Then the next topic is decoder. ठीक है, तो जिस तरह से हमने एनकोडर का स्टडी किया है वैसे ही डिकोडर है. सो डिकोडर इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशनल सर्किट. ठीक है, तो जैसे हमने एनकोडर देखा कि एनकोडर का डिज़ाइन में हमने OR गेट्स का यूज़ किया है. ठीक है, तो सेम डिकोडर इज ऑल्सो यूज द गेट्स फॉर इट डिज़ाइनिंग. सो दैट्स वाई इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो विच हैज़ द n इनपुट लाइन्स एंड मैक्सिमम 2n आउटपुट लाइन. ठीक है, तो ये समरी है, मीन्स उसमें n इनपुट्स रहेंगे सिंपली डिकोडर में, एंड 2n आर द आउटपुट. ठीक है, इस तरह से. तो ये अभी हम लेंगे टाइप्स में, आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये वन ऑफ दीज आउटपुट विल बी एक्टिव हाई बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्रेजेंट. ठीक है, तो जो आउटपुट रहेगा, ठीक है, तो वो डिपेंड रहेगा आपका इनपुट्स में. सो व्हेन द डिकोडर इज अनेबल, दैट मीन्स डिकोडर डिटेक्ट्स द पर्टिकुलर कोड मीन्स इनपुट डेटा. द आउटपुट ऑफ डिकोडर इज नथिंग बट द मिनिमम टर्म्स और मिन टर्म्स ऑफ एनी इनपुट वेरिएबल्स. ठीक है, तो एनकोडर के जस्ट अपोजिट है. एनकोडर में हमने क्या किए थे, नंबर ऑफ इनपुट्स दिए थे एंड वी विल गेट द आउटपुट. यहाँ पे उल्टा है. ठीक है, तो अभी हम टाइप्स देखेंगे. तो फर्स्ट टाइप जो है डिकोडर का वो 2 to 4 डिकोडर है. इसको 2 to 4 लिखा जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ डिकोडर. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे. 2 to 4 डिकोडर. सो इन दैट देर आर 2 इनपुट्स, दैट इज़ A0 एंड A1. ठीक है, एनकोडर में इसके अपोजिट था. A0, A1 आर द आउटपुट एंड देर आर नंबर ऑफ इनपुट्स. ठीक है,
जैसे मक्स एंड डीमक्स है वैसे एनकोडर एंड डिकोडर का पेयर है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 इनपुट्स है, 4 आउटपुट y0 y1 y2 एंड y3 आर द आउटपुट्स, ठीक है। तो अभी हमने जो ये फॉर्मूला दिखा यहाँ पे दैट इज इट हैज़ द n इनपुट्स, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। तो आउटपुट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर 2 इनपुट्स है डिकोडर में तो उसका आउटपुट का फॉर्मूला है 2n, ठीक है। तो n का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2, सो 2 इज़ 4, सो दैट्स वाई इट इज़ 4 आउटपुट्स, ठीक है। सो फर्स्ट n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। सो आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं हम 2n से, ठीक है। सो 2 इज़ नथिंग बट द 4 लाइक दैट। तो इस तरह से हम डिकोडर का आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है डिकोडर पे, हाउ विल कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, ठीक है। डैश 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 और नीचे फॉर्मूला दिया रहेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल पूछ लेंगे टाइप्स पे, जैसे 2 to 4 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर 2 इनपुट्स है, सो व्हाट आर द आउटपुट फॉर द 2 to 4 और सॉरी फॉर द डिकोडर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एंड दे कैलकुलेट द दिस आउटपुट्स, ठीक है। सो दैट्स वाई इट हैज़ द 2 इनपुट्स and 2 that is 4 outputs are there. So that is the simple block diagram for 2 to 4 decoder. Then we'll take the truth table. So in that the enable is also here as the input. So truth table has the inputs and outputs. So the first column is for the enable. When this enable is equal to 1, at that time these 2 to 4 decoder will be work, means the inputs are get connected at the outputs, okay. So the first condition is enable is 0, so at that time we cannot predict the output, so all the outputs will be 0 because this decoder will be in disable condition in short. So that's why this a1 and a0 will cannot be predict, that's why इसको हमने यहाँ पे x is nothing but the don't care condition in the digital electronics, ठीक है, means we cannot predict the output. Then second one, when this enable is 1, so the first condition for this a0 and a1, because there are 2 inputs, so 2 raised to n, that is 2 raised to 2, 4, so there are 4 condition in the truth table here. So the first condition is a0 a1 is 0 0, so at that time y0 will be selected, or at the y0 will get the output from this input when a1 and a0 will be 0 0. Second condition, this a1 is 0 and a0 is 1, so that will be the one condition in the decimal, that's why we'll get the output at the y1, remaining bits are get or outputs are get 0. Third condition, this a1 is 1, a0 is 0, so that will be the 2 in the decimal, so we'll get the output at the 2, that is y2. Other outputs are get 0 in that case, so only this input will be connected at this y2 and will get the output at the y2 only. Next condition, when a1 is 1 and a0 is 1, so that is the 3 in the decimal, 1 1 means, so y3 will be at the y3 will get the output and other outputs will get 0, that is y0 y1 and y2 are 0, like that. So again the summary of this truth table is we get the output in diagonal fashion, that first y0 will be at the output, then y1, then y2 and then y3 is there, other remaining bits are get 0, like that. After that we'll take the Boolean equation from this truth table. Then next part is we'll see the Boolean functions for this 2 to 4 decoder. So the Boolean function or Boolean equation gives the relation between outputs and inputs, okay. तो यहाँ पे 4 आउटपुट्स है y0 y1 y2 y3, तो क्लियरली हमें यहाँ पे 4 इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज हम y3 का लेते हैं, ठीक है, तो ये y3 को हम कंसिडर करेंगे।
सो y3 इज़ द आउटपुट, ठीक है। तो इसके लिए इनपुट जो रहेंगे ये आपका A0, A1 एंड अनेबल, ठीक है। सो दीज 3 आर द इनपुट्स एंड दीज आर द आउटपुट्स। तो बुलियन फंक्शन आपका आउटपुट और इनपुट में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रुथ टेबल में y3 हमें कब 1 मिल रहा है, व्हेन दिस A0 इज़ 1, A1 इज़ 1 एंड अनेबल इज़ 1। सो दिस इज़ E.A1.A0। 1 मीन्स इसलिए यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया हुआ, एज इट इज़ लिखा है E.A1.A0, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होता तो हम डैश लेते, डैश या बार कॉम्प्लीमेंट। सो दैट इज़ द फर्स्ट बुलियन इक्वेशन फॉर दिस y3 आउटपुट। उसके बाद देखेंगे हम y2। तो y2 का जो कॉलम है उसे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो y2 कब 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो जो उसका रिस्पेक्टेड रो है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अनेबल 1 है, सो दैट्स वाई इज़ एज इट इज़, A1 1 है एज इट इज़, दिस A0 इज़ 0, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इज एज अ कॉम्प्लीमेंट A0 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे A0 डैश हमने कॉम्प्लीमेंट में 0 है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉर द y1। तो y1 का कॉलम कंसिडर करेंगे, y1 कब 1 है, थर्ड रो में, ठीक है। तो थर्ड रो का हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे E एज इट इज़ है, दिस A1 इज़ 0, सो दैट्स वाई इट इज़ A1 डैश इज़ देयर, कॉम्प्लीमेंट है, A0 इज़ 1, सो टेकन एज इट इज़, ओके। तो ये हमारा थर्ड बुलियन इक्वेशन हो गया y1 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इजी है बुलियन इक्वेशन, पर आपका ट्रुथ टेबल करेक्ट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ द y0, सो द कंसिडर दिस y0 कॉलम। So in second row it will be a 1, so consider it. So in that enable is as it is, this A1 is 0, so that A1 dash is there, complement. A0 is also 0, so A0 dash is there as a complement. So these are the 4 Boolean equations for this decoder. Then after that we design it. So we clearly know that AND gates are used because the product terms are there. So there is a relation of multiplication between this A1 and A0. So we use the AND gate because the AND gate gives the multiplication between the input present at the output. So for that there are 4 terms, y0, y1, y2 and y3. That's why we clearly require the 4 AND gates, first, second, third and the fourth. And 2 NOT gates are required because there is a requirement of A0 dash and A1 dash. So that's why NOT gate is used. So here is the detailed design of 2 to 4 decoder. So this A0 and A1 as a inputs, and here we use the NOT gate, 2 NOT gate. So here we will get the A1 dash as a output, here we will get the A0 dash as a output, ठीक है। तो first, second, third, fourth, and this enable is common to all the gate as a input, ठीक है। तो सभी गेट्स के लिए E कॉमन रहेगा and its value will be 1, ठीक है। तो E1 जब E जो 1 रहेगा तभी यहाँ पे हमें आउटपुट्स मिलेगा, मीन्स अनेबल रहेगा ये डिकोडर इन शॉर्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बुलियन इक्वेशन, अभी हमने बुलियन इक्वेशन लिए है, उस हिसाब से हम यहाँ पे इनपुट के कनेक्शन करेंगे A0 एंड A1 का, ठीक है। and we'll get the respected output. So there are 4 outputs, y0 to y3, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन है 2 to 4 डिकोडर का, ठीक है। तो इसके लिए बुलियन इक्वेशन आपके करेक्ट होने चाहिए। बुलियन इक्वेशन करेक्ट है तो ये कनेक्शन इनपुट्स के करेक्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे हम y0 के लिए लेते हैं यहाँ पे, सॉरी y3 के लिए लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो y3 एज अ E एज अ अनेबल एज अ वन ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो ये आपका E है फर्स्ट एंड गेट के लिए। सेकंड A1, सो A1 डायरेक्टली कनेक्ट है, कोई नॉट गेट की ज़रूरत नहीं है। A0 एज इट इज़ कनेक्टेड, A0 एज इट इज़ कनेक्टेड बिकॉज उनके वैल्यू 1 है, ठीक है। एंड विल गेट द y3 एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस E डॉट A0 डॉट A1, so that is the output y3. Like that y2 is there, so y2 E is input, so E is input, A1 and A dash, so this A1 is get connected directly, second input is A0 dash मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने नॉट गेट यूज़ किया है, तो यहाँ से हम एज ए इनपुट देंगे, ठीक है। एंड द y2 इज
e dot a1 dot a0 dash is there, so that is y2. So like that there is a y1 and y0, ठीक है. Then next second type of decoder is 3 to 8 decoder, ठीक है. So in that first we'll see the block diagram. So 3 to 8 decoder has a 3 input. That first figure denotes the inputs, that is n, जो अभी हमने बेसिक्स में देखा, ठीक है. So n is equal to 3, so it has the 3 inputs like a, b and c are the inputs for 3 to 8, and we have to calculate suppose the output. So there is a formula 2 raised to n, so this 2 raised to input 3, so it is 8, so that's why the output is 8. So that is the formula to calculate the output for decoder. So that's why it has the 8 outputs are there, that is from D0 to D7, ठीक है. So that are the outputs. So that is the block diagram. So 3 to 8 decoder consists of 3 inputs and 8 outputs are there. Then we'll see the truth table. So the truth table gives the relationship between inputs and output. So there are 3 inputs A, B, C is there, and the output is from D0 to D7. So the first condition is inputs are 3, that's why 2 raised to 3 is equal to 8. So there are 8 conditions in the input, that is from 0 to 7. So the first condition is A, B, C, both are, these 3 are 0. So at that time D0 will be present at the output, other bits are remaining और other terminals are get 0. Okay, so D0 connect होगा आपका output में from input when these A, B, C are 0. Second condition, A is 0, B is 0 and C is 1. So that will be 1 in the decimal. So in that case this D1 will be at the output, other bits are 0, ठीक है. Next condition 0, 1, 0. So that will be the 2 in the decimal. So this D2 will be present, other bits are or other terminals are at the 0 position. Then next will be the 0, 1, 1, which is the 3. So in that case this D3 will be present at the output, other terminals are get 0. Next will be the 1, 0, 0, that is 4 in decimal. So D4 will be present, other are 0. Next is 1, 0, 1, which is 5. So D5 will be get at the output, other are 0. Next one is the 1, 1, 0, that will be the 6. So that is D6 will be present, that will be the 1, and other are 0. And the last one is the ABCR 1, 1, 1, that will be the 7 in the decimal. So that's why D7 will be present, other terminals are 0. So the summary of this truth table is we get the diagonally elements, that is from D0 to D7 one by one. This at a time only one output is get from the input, so that will depend on the these inputs ABC. So that is the truth table for 3 to 8 decoder. Then the next part is the boolean function or boolean expression, and these are get from this truth table, ठीक है. So it gives the relationship between inputs and outputs. So these outputs, so there are total 7 output, that is from D0 to D7. So clearly यहाँ पे हमें 7 टर्म्स मिलेंगी, ठीक है. D0 के लिए अलग, D1, D2, D3, ठीक है, इस तरह से. तो सबसे पहले हम D0 के लिए लिखते हैं, तो D0 का कॉलम कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो D0 में जब ये आउटपुट मिल रहा है हमें 1, ठीक है, तो वो हम कॉलम कंसीडर करेंगे. इनपुट्स क्या है, ABC, ठीक है. तो ABC these 3 are 0, 0. So that's why it is considered as a dash, means complement. A dash into B dash into C dash, because both are 0, ठीक है. तो बुलियन एक्सप्रेशन में आपको सिंपली ध्यान देना है कि आउटपुट से इनपुट का रिलेशन है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल में पता है कि आउटपुट कौन सा है और इनपुट कौन सा है, ठीक है. तो आउटपुट यहाँ पे 7 है, तो 7 टर्म्स मिलेंगे क्लियरली, ठीक है. तो जहाँ पे भी 1 है आपका आउटपुट, तो वो आपको रो कंसीडर करना है और उसका रिलेशन दिखाना है इनपुट में,
ठीक है। अगर 0 है तो डैश आएगा या बार आएगा, 1 है तो एज इट इज़। सेकंड जो है D1 के लिए, तो D1 जहाँ पे 1 है, ठीक है, या जहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, कंसिडर दैट रो, तो उसमें ए बी 0 0, ए डैश बी डैश एंड सी इज़ 1, सो सी इज़ टेकन एज इट इज़, सो ए डैश बी डैश डॉट सी इज़ देयर। नेक्स्ट है D2 का कॉलम यहाँ पे है, ठीक है। देन कंसिडर इट्स रो, सो दिस ए डैश बी सी डैश, so that is D2. Then D3, consider this row, so this A dash B C, so that is the D3. Then we'll see the D4. D4 is A B dash C dash and D5 is A B dash C, and D6 is A B C dash and D7 is A B C, like that. So we get the 7 equations from this truth table. Then we design this 3 to 8 line decoder. So for that the outputs are D0 to D7, total 8 outputs are there and 3 inputs are there, which are A, B and C. So that's why we require the 3 NOT gate, ठीक है। तो कहीं पे हमारा A डैश लग रहा है, B डैश, C डैश, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपका A डैश है, ये B डैश है नॉट गेट का आउटपुट, ये थर्ड जो है वो आपका C डैश है, ठीक है। सो द अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस D0, D1, D2 बिट्स वी कैन कनेक्ट द इनपुट लाइन्स एंड विल गेट द रिस्पेक्टेड आउटपुट। तो हमें टोटल 8 आउटपुट्स यहाँ पे मिलेंगे एंड दीज आर द LED कनेक्टेड एट द आउटपुट। व्हेन दिस LED विल बी ऑन, so we say that output will be obtained at this D7 or D6 or like D5 in these bit conditions. So that is the design for 3 to 8 line decoder. So जो next topic है वो है shift register, ठीक है। तो shift register क्या करता है, it is a one of the type of register that store the input value in a sequence, ठीक है। तो शिफ्ट रजिस्टर अलग अलग टाइप्स के, तो शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है, नाम ही उसका शिफ्ट रजिस्टर मीन्स डेटा को शिफ्ट करना। इट कैन स्टोर द डेटा इन अ और वैल्यूज़ इन अ सीक्वेंस एंड दैट ईच क्लॉक इज टिक द वैल्यूज स्टोर आर शिफ्टेड फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू द एडजेसेंट। मीन्स इसमें क्लॉक का यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये डी फ्लिप फ्लॉप है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अगर फ्लिप फ्लॉप आपको याद है तो ये इजीली समझ में आएगा। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ मेमोरी एलिमेंट टू स्टोर 0 और 1, ठीक है। जैसे हमने सेट एंड रीसेट कंडीशन देखा, सो इन दैट केस 0 एंड 1 विल बी स्टोर इन द फ्लिप फ्लॉप, सो लाइक दैट एंड इट हैज़ द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक। तो जब तक हम क्लॉक एज ए इनपुट नहीं देते तब तक ये इसके मेमोरी में 0 एंड 1 सेव नहीं होगा, ठीक है। सो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक the values 0 or 1 of the input data will be stored in this shift register or it can be shift from one flip flop to the adjacent, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीट शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे 8 बीट है, 4 बीट्स है, 16 बीट्स, ओके, लाइक दैट। सो व्हेन द क्लॉक इज गिवन, that data will be shift from one flip flop to the other flip flop and then other flip flop to the another flip flop, like that. So that's why it is called as a shift register. It will shift the data and for that purpose to store the one bit we use the one flip flop, ठीक है। तो जितने बिट्स होंगे उतने फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे होंगे। सपोज 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है, क्लियरली 4 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, लाइक दैट। अगर 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है, 8 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। तो इस तरह से भी MCQ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मीन्स हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इन द शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो एक बीट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप ज़रूरी है, दैट बीट कंडीशन विल बी 1 और 0, सो दैट विल डिपेंड ऑन द डेटा। बाइनरी में 2 ही बिट्स है, एक तो 0 एक तो 1 है, तो वो डिपेंडिंग कि इनपुट में क्या बिट स्ट्रीम है उस हिसाब से वो स्टोर करेगा 0 और 1, ठीक है। बट 4 बिट्स डेटा चाहिए तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे क्लियरली लगेंगे, ठीक है। तो आपको जो टाइप्स पढ़ना है उसमें जनरली 4 बिट फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर का स्टडी है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप्स है शिफ्ट रजिस्टर के। सो दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ दिस शिफ्ट रजिस्टर।
तो यहाँ पे सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम दिया है. So that is the one of the type of shift register. It has the serial output and the serial input is there. So this is the serial input mean जो डेटा है, ठीक है. सो इस तरह से यहाँ पे 8 बिट डेटा रहेगा, ठीक है. सो दैट इज़ द इनपुट एंड विल गेट द इट एट द आउटपुट बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक. तो क्लॉक के हिसाब से ये डेटा क्या होगा, शिफ्ट होगा वन फ्लिप फ्लॉप से अनदर फ्लिप फ्लॉप एंड विल गेट इट एट द आउटपुट. सो दैट इज़ द simple working principle for the shift register. Then we'll see the one of the type of shift register so that these things are clear to you. Then we'll take the 4-bit shift register. So in that we have to design and verify the operation of 4-bit shift register, which is SISO, that is serial in serial output. This S for serial, I for input, S for serial, O for output. मीन्स सीरियली डेटा प्रोवाइड करेंगे हम एंड वही डेटा हमें सीरियली आउटपुट में मिलेगा, ठीक है. सो हमें पता है कि अभी 4-bit शिफ्ट रजिस्टर है तो वी क्लियरली रिक्वायर द 4 फ्लिप फ्लॉप. सो हियर 4 डी फ्लिप फ्लॉप आर यूज, ठीक है. तो इसीलिए हमने पहले फ्लिप फ्लॉप का स्टडी किया. आपको डी फ्लिप फ्लॉप पहले पता होना चाहिए. सो डी फ्लिप फ्लॉप हैज़ ओनली अ 2 इनपुट कंडीशन 0 और 1, ठीक है. सो दैट इज़ डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है. The design, so for 4-bit shift register 4 these flip flops are required, and which are the D flip flop. So here the flip flop 0 is there first, then flip flop 1 is there, flip flop 2 is there, and the last one flip flop 3 is there. So these are 4 flip flops are there. D in is the input from the this LHS side, and the output is taken from at the RHS side. So that is the serial in serial out, and the clock is necessary for the working of this flip flop. So the common clock is given to this flip flop 3, flip flop 2, flip flop 1 and flip flop 0, because when the clock signal is given at that time the bit will be shifted from one flip flop to the another, क्योंकि नाम ही उसका शिफ्ट रजिस्टर है. तो वो बीट्स को क्या करते जाएगा, शिफ्ट करते जाएगा और हमें आउटपुट में बीट्स मिलेंगे लाइक दैट, ठीक है. तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया फॉर दिस SISO सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट फ्लिप फ्लॉप, एंड इसमें हमने उसका ब्लॉक डायग्राम देखा अभी, ठीक है. तो ये जो Q3 है ये आउटपुट है, क्योंकि हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट है, एक क्लॉक लगता है, एंड आउटपुट इज़ Q and Q बार, ठीक है. तो यहाँ पे आउटपुट जो Q3, ये फ्लिप फ्लॉप कैस्केडिंग में यूज़ हुए. कैस्केडिंग मीन्स पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में. जैसे D3 फ्लिप फ्लॉप 3 का इनपुट है तो उसका आउटपुट Q3 है, तो Q3 सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा, मीन्स उसके लिए D2 हो गया है ये. पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, ठीक है. तो फ्लिप फ्लॉप 2 का आउटपुट जो है वो Q2 है, तो Q2 D1 के लिए इनपुट हो गया है यहाँ पे, लाइक दैट. फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट है वो आपका Q1 है, एंड Q1 विल बी गिवन एज अ इनपुट टू दिस फ्लिप फ्लॉप 0, दैट इज D0, लाइक दैट. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैस्केडिंग, मीन्स ये जो फ्लिप फ्लॉप है कैस्केडिंग में कनेक्ट है. आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, लाइक दैट. सो दिस 4-bit shift register, that is the SISO, has a D in as a input and D out is the output. तो LHS में हम input देंगे and that data will be received at the RHS, ठीक है. तो अभी हम उसके लिए इसका वर्किंग लेंगे. वर्किंग मीन्स हमें ट्रुथ टेबल लेना पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे. तो ये जो D in है इसमें हमें 4-bit डेटा चाहिए, क्योंकि 4-bit शिफ्ट रजिस्टर है. सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस 111 एज अ बिट स्ट्रीम, तो हमें ये डेटा यहाँ पे स्टोर करना है और यही डेटा मुझे आउटपुट में चाहिए यहाँ पे डी आउट पे. तो ये 1 by 1 मिलेगा, 4 times 1 1 1 1 1, ठीक है. तो जैसे ही क्लॉक सिग्नल 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका हाई लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है. तो जब भी पॉजिटिव लेवल होगा 1, सो एट दैट टाइम दिस फ्लिप फ्लॉप्स विल बी इन एक्टिव स्टेज, चारों भी,
तभी ये 1 या 0 को स्टोर करेंगे क्लियरली, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस क्लॉक इज ऑलवेज 1 फॉर द वर्किंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो सबसे पहला जो बीट्स है आपका डीन, ठीक है, तो ये फर्स्ट डीन फर्स्ट बीट विल बी 1, सो दैट डीन इज इक्वल टू D3, ठीक है। तो ये जो इनपुट डेटा है, डेटा इनपुट, वो आपका फर्स्ट है फ्लिप फ्लॉप 3 का इनपुट D3, इसलिए हमने लिखा है डीन इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 1, तो पहला बिट 1 है, सो दिस डीन इज 1 एंड दिस डीन इज कनेक्टेड टू D3, सो विच इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डीन इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद जो आउटपुट से आपका Q0, दिस Q1, Q2 एंड Q3 इज देयर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें 1 स्टोर होगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक 1 एंड द अदर बिट्स आर 0, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 1 एंड 0 में आपके 0 0 रहेंगे, सो दैट इज़ द आउटपुट, ठीक है। सेकंड क्या होगा, जब हम क्लॉक 1 अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन में, दिस डीन इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 1, सेकंड जो 1 है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे सेकंड 1 बिट, ओके। सो एट दैट टाइम दिस 1 विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप दैट इज इन फ्लिप फ्लॉप 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड 1 है वो यहाँ पे स्टोर होगा फ्लिप फ्लॉप 3 में, फ्लिप फ्लॉप 3 का 1 फ्लिप फ्लॉप 2 में स्टोर होगा 1, ठीक है। सो द आउटपुट इज 1 1, दिस 1 1 0 0 लाइक दैट। थर्ड में क्या होगा, व्हेन द थर्ड क्लॉक इज 1, so at that time this 1 will be shifted to the flip flop 1 and this 1 will be as a input, third one is the D in, means at the D3, and this 1 will be shifted to the next flip flop, so the output is 1 1 1 1 0 and an application of fourth clock here, this 1 will be shifted at the flip flop 0, so that will be a 1 and this will push this 1 as a D in next bit, fourth one, so the output is 1 1 1 1 which is get at the output, so that is the D in which is provided as a 1 1 1 and the same output will be getting at the output that is serially 1 by 1, ठीक है। तो ये 1 by 1 प्रोवाइड कर रहे हैं हम, फर्स्ट 1, सेकंड 1, थर्ड 1, fourth one, and the application of this clock as a 1, the bits are shifted from the adjacent flip flop from flip flop 3 to 2, 2 to 1, then 1 to 0, and we'll get the output which is 1 1 1. So that is simple working. Then we'll take the truth table according to it. Then we'll see the truth table. So the input is clock and the output is this Q0, Q1, Q2, Q3, okay, this is the output. So the first is X, means this clock is 0 suppose, ठीक है। So at that time output will be a 0, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर होगा ये डिसेबल कंडीशन में होगा, so that X means that is a don't care, we doesn't know the position of clock whether it is 0 or 1, so at that time this shift register will be disable, so there is no output obtained. And when the clock is 1 in next step, so at that time the first bit D in is equal to D3, that 1 of our 4 ones, that 4 ones, so this first 1 will be here, so that will be stored in this flip flop, other bits are 0 because these are first, second, third and fourth flip flop is there. Then application of second clock, this 1 will be shifted, means this second one will be here and this first one will be shifted like that. So application of clock, this 1 bit will be shifted, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 1 1 जो है ये एक बीट आपका शिफ्ट होते जाएगा आउटपुट में, ठीक है, एंड विल गेट दिस 1 1 1 1 एट द आउटपुट, दैट इज D0, D1, D2 and D3 will get at the output, that is 1 1 1 1. So that is the truth table for this serial in serial output flip flop, and after that we will design it.
So that is the design here. So it has the 4D flip-flop, and this is the output. This is the flip-flop 3, that is the Q3 is there, flip-flop 2 Q2 is there, flip-flop 1 Q1 is there, and the flip-flop 0 is there, so Q0 is there. And this is the data in, which is 1 1 1 1. 4-bit data is given because 4-bit register is there. Then clock is as a input, and this is clear. ठीक है, क्लियर मीन्स इसमें जो डेटा रहेगा फ्लिप फ्लॉप में, क्योंकि बिट शिप यहाँ पे सेव हो रहा है 0 and 1, ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने क्लियर लगाया हुआ है बटन, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे क्लियर को, ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर गेटिंग टू द 0 0 0 0, जो हमने फर्स्ट कंडीशन देखा डोंट केयर, सो दैट इज़ द क्लियर। इसको क्लिक करते ही जो भी बिट्स इसमें सेव होगा वो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो इसमें अगर पहले से ही कोई बिट शिफ्ट है और ये हम बिट स्ट्रीम यहाँ पे दे रहे तो आउटपुट हमें यहाँ पे रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे, मीन्स सबको हम रीसेट करेंगे 0 0 0 पे, एंड देन हम 1 by 1 बिट इसमें पुट अप करेंगे, एंड देन विल गेट द आउटपुट एज अ 1 1 1 1 ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लॉक। सो दिस इज द आउटपुट। सो दैट इज द डिज़ाइन ऑफ दिस सीरियल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, दैट इज इन शिफ्ट इन राइट मोड, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हमें राइट साइड में मिल रहा है डी आउट। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंपैरेटर का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।